Hello students, myself Deepak Zade. Today in this lecture we'll solve problem of centroid. Centroid of what? Composite lamina. Composite lamina means which consists of number of simple components. First step is what? Identify number of components. Means given lamina will divide in minimum number of simple components. How many components are there? ये दिख रहा है एक, one rectangle, right? एक सेमी सर्कल है, वन ट्रायंगल. ऑल these semicircle and triangle is added to rectangle, right? means area is positive. but ये जो quarter circle है r30 का, it is removed. means what? this area will take with negative sign, right? that area is removed from the lamina. First what we'll do, we'll give numbers to the components, because next step you have to find out what are the distances, right? So for that one numbering is must. ये component number 1 is what? rectangle. Say component number 2 is what? semicircle. Third component is what? triangle. right angle triangle है, and this component is 4. Fourth component is negative. Position of x and y axis are very important. Position of centroids of individual components we have to find out with respect to x and y axis, so that we'll get position of centroid of composite lamina with respect to x and y axis. Method is what? Find area of each component. Find x and y distances, means centroidal x and y distances, means distances of centroid from y axis and x axis. And once we'll get this area x and y, you know how to find out position of centroid of composite lamina. Formula क्या रहता है? x bar is what? summation of ax upon summation of area, and y bar is what? summation of ay upon summation of area. Okay, all dimensions are given, right? For rectangle, for this component है ना, rectangle component 1, height how much? तो 60 plus 30 means height होगा 90. base how will find out? तो r is 25. तो r means radius है, तो this dimension is what? diameter. तो this dimension is what? 25 plus 25. diameter is how much? 50. means this dimension base of rectangle होगा आपका how much? 50 mm. For rectangular component centroid किधर रहता है? listen carefully. position of centroid of each component. ये आपका height है, तो centroid h/2 पे रहता है, and base b 50 है, उसका center means around you can say, if I locate here this point, this is centroid of component 1, that is rectangle. Distance of centroid from y axis, horizontal distance of centroid from y axis, first component है, we'll write what? x1. vertical distance of centroid from x axis इधर है, ये distance, right? from which axis? x axis. this one is written as what? y1. height how much? 60 plus 30 90. तो y1 how much? will get half ना, b/2 and h/2. तो ये h कितना है? 90. तो y1 हो गया 45. and x1 becomes what? तो base how much? ये आपका बेस है ना, दिस वन 50 mm, राइट? बेस अगर 50 है तो दिस वन इज व्हाट? 25. क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑल यू नो, बेस इनटू हाइट. दैट मीन्स एज पर आवर मेथड व्हाट विल डू, फर्स्ट विल राइट व्हिच कंपोनेंट? 1. व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट? रेक्टेंगल. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है. ओनली वन कंपोनेंट इज नेगेटिव, राइट? क्वार्टर सर्कल. all are positive. So for positive component area we will write with positive sign. base is what? 50. height is what? 90. 90 into 50 45 na, 0. all dimensions are in mm, means this must be in mm square. x1 distance all you are getting how much? half of 50. 50 divided by 2 लिखो, या directly full write then also no problem. ये x1, y1 what will do? height how much? 90. उसका half कितना होगा? 45. up to this step any problem? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट कंपोनेंट क्लियर. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इजी है, राइट? अभी देखो सेकंड कंपोनेंट में मिस्टेक करने का नहीं डिस्टेंसेस में. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है.
पहले तो सेमी सर्कल का सेंट्रोइड विल गेट वेयर, तो ऑन इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये देखो ये आपका एक्स एक्सिस मीन्स डायमीटर, दिस लाइन मीन्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल गेट व्हाट, सेंट्रोइड, फ्रॉम डायमीटर डिस्टेंस क्या रहता है 4r/3 पाई, from diameter for semicircular lamina. If you are recalling, centroid lies where, on its axis of symmetry at a distance of 4r/3 pi from its diameter. ये आपको x and y distances निकालना है. Horizontal distance of centroid will find out from where, from y axis. यही y axis है ना, ये y axis, ये centroid है, means its distance, horizontal distance of centroid from y axis, ये क्या हो जाएगा x2. हाउ मच, ये तो रेडियस हो गए, एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा y2, बट ये बिलो एक्स एक्सिस है, मीन्स y निगेटिव में हो जाएगा, तो आपका y2 क्या हो जाएगा, निगेटिव. आई विल राइट हियर कॉम्पोनेंट टू, क्या है कॉम्पोनेंट टू, सेमी, क्या हो गया, सेमी सर्कल, राइट, दिस वन सेमी सर्कल. सेमी सर्कल है पॉजिटिव, जिसका रेडियस क्या है 25 mm. पहले तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आता है, पाई r स्क्वायर बाय 2, पाई इंटू 25 स्क्वायर बाय 2, रेडियस 25, राइट. करो कैलकुलेट, हाउ मच आंसर यू आर गेटिंग फॉर सेमी सर्कल, एरिया जो है 981.75 mm स्क्वायर, करेक्ट है ना, यस. x2 डिस्टेंस व्हाट वी आर डिस्कस जस्ट नाउ, कि ये x2 है विच इज व्हाट स्मॉल r, मीन्स x2 इज व्हाट स्मॉल r विच इज व्हाट 25 mm, एंड y जो डिस्टेंस है ना ये निगेटिव है, इधर मिस्टेक करने का नहीं, क्वाड्रेंट्स, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, व्हाट डिस्टेंस 4r/3 pi, r 25 है, डिवाइडेड बाय 3 pi, 4r/3 pi मीन्स 100/3 pi, फाइंड आउट 100/3 pi, माइनस आता है 10.61 mm, 10.61 mm होगा x2 हाफ प्रॉब्लम हुआ सॉल्व, ठीक है. अभी फॉर थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट अगेन x and y. Next component I'll take what, triangle. Component 3 is what, triangle. This one is also positive. Area of triangle क्या रहता है, right angle triangle है, half of, base is what 45, height is what 30, मीन्स ये कितना हो जाएगा 15 into 45 मीन्स 450, 225 कितना आता है 675 mm स्क्वायर, ठीक है. वेयर इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट रॉन्ग आंसर ड्यू टू ट्रायंगुलर कंपोनेंट. सबसे पहला स्टेप विच टू साइड्स आर परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करने का, राइट. दिस टू साइड्स आर परपेंडिकुलर, जो साइड्स परपेंडिकुलर रहता है इधर से जो सेंट्रोइड रहता है it is at b/3 and h/3, b/3 and h/3 from the two sides which are mutually perpendicular. मीन्स आपका C3 लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस है, तो x3 जो है ये x डिस्टेंस होगा, तो x3 आपका हो जाएगा निगेटिव, y निगेटिव, लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस है 1/3 ऑफ बेस, बेस क्या है 45, मीन्स दिस वन बिकम्स व्हाट -15 mm. अभी y3 में तो मजा है, आपको ये डिस्टेंस पता है h/3, h कितना है 30, तो ये तो हो गया भाई 10, बट ये थोड़ी ना y3 है, y डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम वेयर, तो इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस, आपका x एक्सिस इधर है, ये डिस्टेंस y3 है एंड ये 10 नहीं है, 10 तो ये है, टोटल हाइट कितना है 90, 90 से 10 गया, 90 से क्या गया 10, तो कितना हो जाएगा ये 80 mm, क्लियर. तो y3 हो गया 80 mm. अभी क्या बाकी है, कंपोनेंट
4। क्या है कंपोनेंट 4? क्वार्टर सर्कल, बट ये क्वार्टर सर्कल ना रिमूव किया है तो इसको निगेटिव करेंगे। एरिया विल राइट विथ माइनस साइन, पाई आर कितना है 30 ना, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस, फाइंड आउट कितना आता है। कंपोनेंट 4 में क्वार्टर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4 706.86 706.86 mm स्क्वायर। अभी आपको चाहिए इसका x एंड इसका y। अभी क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड किधर रहता है? इट इज ऑलवेज एट व्हाट डिस्टेंस 4r/3 फ्रॉम द टू साइड्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहले ये एक साइड हॉरिजॉन्टल है एंड दिस साइड इज व्हाट वर्टिकल, नीचे 90 डिग्री है, तो सेंट्रॉइड समवेयर हियर C4। आपका ये डिस्टेंस जो है 4r/3 and this distance is also 4r/3, but ये x3 y3 नहीं है। x distance will measure from where? Always from y axis। y axis इधर है, ये सेंट्रॉइड है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये आपका x डिस्टेंस है, x4 किधर से मिलेगा? तो ये टोटल कितना है भाई? 50 है ना, ये कितना है 50, उसमें से कितना गया? सुनो, ये x निकालना है, आपको ये पता है 50 और ये डिस्टेंस है 4r/3 मीन्स दिस वन व्हाट विल गेट 50 माइनस 4r/3। इसमें रेडियस डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो x3 क्या आया? 50 माइनस 4r/3, रेडियस कितना है 30। तो सब्ट्रैक्ट करो तो 4r/3 कितना आता है? 4r/ रेडियस क्या है उसका? 25 की 30 है। फोर आर चेक करो कितना आता है? 37.26 आता है। 267 मीन्स 37.27 37.27 यू मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर इन कैलकुलेशन, वेरी डेंजरस, नहीं तो आंसर नहीं आता है। अभी देखो y कैसा निकालना है? y डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम वेयर? कहाँ से मेजर करते वाड़ी? ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस किधर है? ये है, सेंट्रॉइड किधर है? मीन्स भाई ये डिस्टेंस होगा ना, ये सेंट्रॉइड, ये डिस्टेंस, राइट। ये अगर निकालना है तो दिस इज व्हाट y4। टोटल हाइट हाउ मच? 60 प्लस 30 तो 90 है। 90 माइनस 4r/3, 90 माइनस 4r/3, 90 माइनस 4r/3 कितना होता है? 77.27 आना चाहिए, 77.27 mm। दिस इज व्हाट 90 माइनस 4r/3। क्लियर? जैसे ऑल एक्स वाई वैल्यूज आर नोन, नेक्स्ट स्टेप जो है मैं इरेज करता हूँ सब। टू फाइंड आउट एक्स बार, व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्स बार क्या रहता है? समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ एरिया। क्या रहता है? समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ एरिया। देखो एक्स बार इज समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ एरिया। अब ये जो समेशन ऑफ ए एक्स है ना, ये कैसा आता है? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 मीन्स प्रोडक्ट आएगा a1 x1। उसमें ना दोनों प्लस रहेगा तो प्रोडक्ट प्लस आता है, एक आधा माइनस रहेगा तो जैसा a4 के लिए a4 नेगेटिव है तो आपका a4 x4 टर्म नेगेटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट a4 नेगेटिव x4 पॉजिटिव है ना। ये कंपोनेंट 4 ना, तो ये अरे सॉरी ये तो 4 है, हाँ A4 नेगेटिव x4 नेगेटिव, बट इधर देखो A3 पॉजिटिव है एरिया बट x3 नेगेटिव है, मीन्स ये प्रोडक्ट भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, राइट। दिस वन बिकम्स व्हाट? नेगेटिव। तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके
समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो समेशन ऑफ एरिया जो है ये आता है 5449.89. समेशन ऑफ एक्स टर्म जो है 100.574 इंटू 10⁻³ आता है एंड इफ विल फाइंड आउट ये आता है 18.45 mm. ठीक है, ये कैलकुलेट करो. ठीक है, y बार इज व्हाट समेशन ऑफ ay अपॉन समेशन ऑफ एरिया. समेशन ऑफ एरिया है 5449.89 and summation of ay comes out to be 191.46 into 10⁻³. So this one is how much? More than 30, 35.13 millimeter. That means x बार आया है 18.45 mm एंड y बार जो है ये आया है 35.13 mm. Okay, this problem is from Mumbai University exam asked in December 2015. This is for at least 8 marks के लिए, right? How many marks? 8 marks. December 15 8 marks का क्वेश्चन है. क्लियर, समझ में आया कि नहीं? इसका ना फर्स्ट वीडियो जो है वो प्रॉपर देखो, मीन्स बेसिक फॉर्मूलाज, देन हाउ विल फाइंड आउट फॉर ईच कॉम्पोनेंट. एक्सप्लेन प्रॉपरली कि एक्स वाई कैसा लेते हैं ना, क्वाड्रेंट चेंज होता है तो एक्स वाई प्लस माइनस कैसा होता है. समवेयर में बी हाउ टू ऐड सच 4r/3π जो भी डिस्टेंस रहता है. अभी ये आपका टोटल 100 कितना है 50 है, 50 से 4r/3π माइनस हो गए. इधर तो डायरेक्ट 4r/3π. दैट डिपेंड्स ऑन हाउ ओरिएंटेशन ऑफ कंपोनेंट इज गिवन. ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन.